Get ready for the new anime sensation, Oshi no Ko. Follow the story of a teenage girl who becomes the manager of a popular idol group. Will she be able to navigate the world of idols and fulfill her dreams? Goro Amamiya is tasked with helping deliver the children of Ai Hashino, an idol singer whom he admires, without the knowledge of the general public. However, the night of Ai's delivery, Goro is murdered by an obsessive fan of Ai's, and is reincarnated as Aquamarine Hashino, Ai's son, retaining his memories of his previous life. Unbeknownst to him, Aqua's fraternal twin, Ruby Hashino, is also a reincarnation of one of Goro's patients who was a fan of Ai's. 4 years later, Ai is murdered by the same fan, who later dies by suicide. However, Aqua deduces that the murderer may have had his and Ruby's father as an accomplice and resolves to infiltrate the entertainment industry to find and kill him. 12 years later, Aqua and Ruby have become high school students and have been adopted by Ichigo and Miyako Sato, the owners of Ai's talent agency, Strawberry Productions. Ruby dreams of becoming an idol singer herself, to which Aqua opposes because he fears she may be killed just like Ai. He relents when Ruby becomes employed by their family's agency, while he returns to his acting career. At the same time, Ruby forms an idol group with actress Kena Arima and YouTuber Mame Cho named Bikomachi, after Ai's former group. Both Aqua and Ruby begin building their careers in entertainment, with Aqua using his newfound friendship with actress Akane Kurokawa as a means to locate his father. During a stage production, Aqua discovers that he shares the same father with his co-star, Teiki Himakawa, and that he had died by suicide before Ai's murder. However, Aqua learns through Akane that their father is actually actor Hikaru Kamiki, who is still alive. At the same time, during a shooting for Bikomashi's music video, Ruby finds Goro's corpse and learns about the culprit behind his and Ai's murders. Both incidents fuel Aqua and Ruby's grudges respectively and motivate them to find their father. However, as they both become increasingly manipulative, Aqua and Ruby find each other at odds throughout their attempts to reach Hikaru, eventually losing trust in each other after Aqua leaks their connection to Ai to the media. With the help of Gotanda, Aqua creates a screenplay for an autobiographical film based on Ai, titled 15 Years of Lies, in hopes of drawing Hikaru's attention. Ruby aggressively and successfully lands the starring role. Don't miss out on this exciting new series. Stay tuned for more updates and episodes. नमस्ते सब लोग, मेरे चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हमारे पास गोता लगाने के लिए वास्तव में कुछ रोमांचक है। ओकेमित्सु अकेगामी को उसके पिता हमेशा कहते थे कि कोई भी अकेला नहीं रह सकता। लेकिन वह निश्चित रूप से दृढ़ है। आखिरकार उसके पिता निश्चित रूप से इसे अच्छे इरादों से नहीं कह रहे थे और ओकेमित्सु को उस ढोंगी जैसा बनने की कोई इच्छा नहीं है। लेकिन जब एक यंग वुमन के साथ अचानक मुलाकात उसके मन में बहुत ही अशुद्ध विचार छोड़ देती है, तो वह वही करने का फैसला करता है जो उसे करना चाहिए, एक बौद्ध भिक्षु बनना और सांसारिक तरीकों का त्याग करना। लेकिन जिस मंदिर में उसने खुद को समर्पित करने का फैसला किया, वह महिलाओं से भरा है, और वही यंग वुमन भी वहाँ है। एक आदमी को क्या करना है? लिटिल स्टोरी। ओकेमित्सु को उसके वुमनाइजिंग पिता ने त्याग दिया है। वर्षों बाद ओकेमित्सु एक सिविल सेवक बनने के लिए अध्ययन करता है और अपने पिता जैसा कुछ भी बनने से इनकार करते हुए डेट करने से इनकार कर देता है। एक दिन उसकी मुलाकात युजुकी नाम की एक प्यारी लड़की से होती है और उसे प्यार हो जाता है। इससे वह पागल हो जाता है क्योंकि उसकी दमित लंपटता उभर कर सामने आती है। यह निर्णय लेते हुए कि वह अपने पिता की विकृति से शापित है, वह एक भिक्षु के रूप में नामांकित होता है। अफसोस, वहाँ उसकी मुलाकात सबसे पहले आधे कपड़े पहने हुए युजुकी से होती है, जिसके कारण वह भागने की कोशिश करने और एक कुएं में गिरने से पहले हताश होकर शादी का प्रस्ताव रखता है। युजुकी वास्तव में किसी अन्य व्यक्ति के साथ अरेंज मैरिज मीटिंग के लिए वहाँ गई है, जिससे वह भ्रमित हो गई है। ओकेमित्सु अपने गिरने के बाद फिर से घायल अवस्था में प्रकट होता है, जिससे उसे लगता है कि वह एक लंपट भूत है क्योंकि वह वहाँ रहने वाली महिलाओं को डराता हुआ इधर उधर लड़खड़ा रहा है। उसके पकड़े जाने के बाद पता चला कि मंदिर अब पुजारियों के लिए एक भिक्षुणी विहार बन गया है।
ओकेमित्सु चला जाता है, लेकिन युजुकी उसके लिए खेद महसूस करते हुए उसे सुबह की बस पाने के लिए रात भर रुकने के लिए मना लेता है। दुर्भाग्य से जब उन्हें पता चला कि उनके परिवार का नाम अकेगामी है, तो पता चला कि उनके पिता पर मंदिर का 20 मिलियन येन बकाया है। ओकेमित्सु यह जानकर भयभीत हो जाता है कि उसे अब कर्ज चुकाने तक कुत्ते के शरीर के रूप में मंदिर में रहना होगा। इस साहसिक कार्य में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने वीडियो का आनंद लिया है तो इसे लाइक करना न भूलें और अधिक रोमांचक सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जाने से पहले अधिसूचना घंटी बजाना याद रखें ताकि जब हम नई सामग्री जारी करें तो आपको हमेशा सबसे पहले पता चले। अगली बार तक ध्यान रखें और अन्वेषण करते रहें। आपका स्वागत है एनीमे प्रशंसकों। आज हम मासुमुने कुन्नो रिवेंज आर्क की मनोरम दुनिया में गोता लगा रहे हैं, जो लोकप्रिय मासुमुने कुन्नो रिवेंज श्रृंखला की अगली कड़ी है। भावनाओं के एक अविस्मरणीय रोलर कोस्टर और निश्चित रूप से कुछ मीठे प्रतिशोध के लिए तैयार हो जाए। मकाबे मासुमुने एक मोटा बच्चा था जिसे उसके पहले प्यार के कारण पिगलिट कहा जाता था। टूटे हुए दिल के कारण उन्होंने पहाड़ों में अपने दादा दादी के साथ प्रशिक्षण लेने का फैसला किया। बदले की भावना से प्रेरित होकर वह बड़ा होकर एक आदर्श सुंदर लड़का बनता है। अब उसके लिए जो कुछ बचा है वह है कि वह अपना पहला क्रश अडागाकी अका उससे प्यार करे और फिर उसे छोड़ दे। उसकी बदला लेने की योजना उसे उससे प्यार करने और उसे अस्वीकार करने की थी। उसकी योजना काम कर रही थी और अका ने धीरे धीरे मासुमुने के लिए अपना दिल खोल दिया। उन्होंने सांस्कृतिक उत्सव में चुंबन भी किया। समय बीत चुका है और फ्रांस की उनकी स्कूल यात्रा के दौरान बदला लेने के लिए मंच तैयार है। पेरिस के रोमांटिक माहौल में घूमते समय मासुमुने का दिल तेजी से धड़क रहा है और अका उससे कहती है कि उसे लगता है कि आखिरकार अब समय आ गया है कि वे गंभीर बातचीत करें। लेकिन फिर उसकी मुलाकात एक फ्रांसीसी लड़की म्यूरियल बेसन से होती है, जो एक मंगा कलाकार बनने की इच्छा रखती है। वह उसकी पूरी योजना पर पानी फेर सकती है। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इस वीडियो का आनंद लिया है तो इसे लाइक करना न भूलें और इस तरह की और सामग्री के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अधिसूचना घंटी भी दबाएं ताकि आप कभी भी कोई अपडेट न चूकें। मुझे पसंद है आपकी टिप्पणियां पढ़ रहा हूं, इसलिए नीचे मुझे बताएं कि आपने इस वीडियो के बारे में क्या सोचा। अगली बार तक अपना ध्यान रखें और अगले वीडियो में मिलते हैं। हेलो एवरीवन, न्यू एनिमे ऑनगोइंग लायर लायर अकादमी द्वीप में सब कुछ एक निश्चित संख्या में सितारों के लिए आयोजित गेम्स के माध्यम से तय किया जाता है, जिसमें सबसे मजबूत छात्र को 7 सितारों की रैंकिंग दी जाती है। हिरोटो का स्थानांतरण एमी अकादमी में हो जाता है, जिसकी देखरेख सेओनजी कॉर्पोरेशन करता है, जो छात्रों के फोन में सभी तकनीक प्रदान करता है। छात्र अपनी रैंकिंग निर्धारित करने के लिए खेलों में प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिनमें सबसे उच्चतम और दुर्लभ 7 सितारे हैं। हिरोटो का सामना ओका अकादमी के सारसा से होता है। जैसे घास का छिड़काव उसके कपड़ों को भिगो देता है, इसलिए वो उसे शर्मिंदा करने की कोशिश करने के लिए उसे दोषी ठहराती है और चेहरे की पहचान करने वाले कैमरों द्वारा लागू घूरने की प्रतियोगिता में उसे चुनौती देती है। जब स्प्रिंकलर उसे फिर से भिगोता है तो वो शर्मिंदा हो जाती है। वो उसकी ब्रा देख सकता है और कैमरे उसे हारा हुआ घोषित करते हैं। हिरोटो को उसके सितारों में से एक देते हैं। प्रिंसिपल नत्सुम ने हिरोटो को बुलाया और उन्हें बताया कि सारसा कुछ 7 सितारा छात्रों में से एक है और सायंजी कॉर्पोरेशन के सीईओ मासुमुने की पोती है। एक आम नागरिक के रूप में उसका जीवन अब सायंजी के अपमान के कारण खतरे में है, लेकिन सौभाग्य से उसने जो सितारा जीता वो 15 लाल सितारों में से एक था, जो उसे किसी भी झूठ को सच बताने की अनुमति देता है। इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए वह साथ होने का दिखावा करता है स्टार, क्योंकि यह सायंजी के लिए कम अपमानजनक है। सरसा ने सख्ती से उसका सामना किया और खुलासा किया कि वो वास्तव में अगबाना है। सरसा का प्रलोभन, जिसे लाल सितारा सौंपा गया था ताकि लोगों को विश्वास हो कि वो सरसा है। वो उससे विनती करती है कि वो इसे उजागर न करे। वो तब हैरान हो जाती है जब हिरोटो को पता चलता है कि वो एक नकली 7 सितारा है और स्प्रिंकलर एक वास्तविक दुर्घटना थी, जिसका अर्थ है कि अतिरंजित प्रतिक्रिया के कारण लाल सितारा खोना पूरी तरह से उसकी अपनी गलती थी। लाइक, टिप्पणी और सदस्यता की सराहना करते हैं। यदि आपने वीडियो का आनंद लिया है तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से आप हमारी नवीनतम सामग्री से अपडेट रहेंगे और इससे हमें व्यापक दर्शकों तक पहुंचने में भी मदद मिलेगी। याद रखें,
आपका समर्थन हमारे चैनल की वृद्धि और सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम आपके लिए मूल्यवान और मनोरंजक वीडियो लाने के लिए लगातार कड़ी मेहनत कर रहे हैं और आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए अमूल्य है। एक बार फिर देखने के लिए धन्यवाद और हमें आशा है कि आप हमारे चैनल को पसंद करने और सदस्यता लेने पर विचार करेंगे। हम भविष्य में आपके लिए और अधिक रोमांचक कंटेंट लाने के लिए तत्पर हैं। Hey there, fellow anime lovers. Welcome back to our channel. Today, we've got something special lined up, a journey into a fantasy world filled with magic, adventure, and profound emotions. I'm your host. एक हिकिकोमोरी को बेहतर जादू के साथ दूसरी दुनिया में पुनर्जन्म दिया जाता है। हालांकि वो फिर से हिकिकोमोरी बनने की योजना बना रहा है। वो नवजात राजकुमार रेनहॉर्ड, राजा जिल्क और पूर्व नायिका रानी गिजेलोटे के बेटे के रूप में जागता है। ये जानकर कि उसका जादू का स्तर केवल 0.2 है और वो केवल बैरियर जादू का उपयोग कर सकता है, शर्मिंदा माता पिता ने उसे जंगल में छोड़ दिया। ये पता चला है कि मापने वाला क्रिस्टल केवल 2 अंकों को मापता है। उसकी शक्ति का स्तर वास्तव में भगवान के बराबर 1002 है। रेनहॉर्ड को लगता है कि बैरियर जादू के कई प्रकार के उपयोग हैं जो उसे उड़ने और लड़ने की अनुमति देता है। वो फ्ले नाम के फ्लेम फेनर को हरा देता है और अपने शाही वंश को छुपाना चाहता है। आवेगपूर्वक दावा करता है कि वो दानव भगवान हारुतो है और उसे एक खूबसूरत महिला के रूप में अपने परिचित के रूप में लेता है। काउंट गोल ज़ेनफ्रिज, जो कि राजा जिलिक का एक रिश्तेदार है, जिलिक के कार्यों से निराश है और गुप्त रूप से हारुतो को अपने बेटे के रूप में और फ्ले को अपने नौकर के रूप में अपनाता है। 9 साल बाद हारुतो गोल्ड अपनी मां नतालिया और बहन चार्लोट के साथ रहता है। वो चार्लोट से संघर्ष करता है जो उसे पसंद नहीं करती, लेकिन एक दिन चुपचाप भागने की योजना भी बनाती है। गोल्ड ने उसे तलवार चलाना सिखाना शुरू कर दिया, लेकिन हारुतो ने बैरियर जादू की अपनी महारत को परिष्कृत कर लिया। अब एक शक्तिशाली लड़ाकू है। गोल्ड और नतालिया को चिंता है कि हारुतो की अजीब क्षमताओं का मतलब ये हो सकता है कि उसके पास एक राक्षस पूर्वज है जो फ्ले के उसके प्रति लगाव को भी समझाता है, लेकिन वे संतुष्ट है कि उन्होंने उसे एक अच्छे इंसान के रूप में पाला है। 100 घायल लोगों के साथ एक डाकू ठिकाने पर असफल छापे से सोना वापस आता है, जिन्हें हारुतो गुप्त रूप से ठीक करता है। उस रात हारुतो और फ्ले बदला लेने के लिए डाकुओं का नरसंहार करने के लिए निकल पड़े। चार गलती से उन्हें उड़ते हुए देख लेता है। हारुतो को पता चलता है कि डाकू पड़ोसी साम्राज्य के सैनिक हैं, जिन्हें एक देशद्रोही उच्च पदस्थ राज्य अधिकारी की मदद से राज्य में अराजकता पैदा करने के लिए भेजा गया था। हारुतो के पास एक गुमनाम पत्र में गोल्ड को भेजी गई सारी जानकारी है। अग्नि जादू के उपयोग के कारण गोल्ड संदिग्ध फ्ले ने आक्रमणकारियों को मार डाला। 4 को हारुतो की डरावनी आभा के कारण उस पर संदेह है। यही कारण है कि वो उसे पसंद नहीं करती है, इसलिए वो उसका पीछा करना शुरू कर देती है। आखिरकार नतालिया 4 को एक उत्सव की यात्रा पर ले जाती है, लेकिन साम्राज्य के सैनिकों द्वारा उस पर हमला किया जाता है। Alright, that's it for now. Remember, like, subscribe, and hit the bell icon to stay tuned. Until next time, keep exploring and keep being awesome. See you in the next video. Hello everyone, new anime ongoing. EUQ की दुनिया में आपका स्वागत है। महाकाव्य एनीमे जो आपको एक अविस्मरणीय यात्रा पर ले जाएगा। दृश्य में मुख्य पात्र अपने हथियारों और जादुई शक्तियों के प्रदर्शन के साथ एक पंक्ति में वीरतापूर्वक खड़े होते हैं। बहुत समय पहले एक दानव भगवान अस्तित्व में था जिसने पूरी दुनिया में तब तक आतंक मचाया जब तक कि एक नायक ने मंच पर आकर दानव भगवान को चुनौती नहीं दी, अंततः उसे हरा दिया और उसका शासन समाप्त कर दिया। इसके बाद हीरो ने रोजवुड अकादमी बनाई, एक अकादमी जो प्रशिक्षण में नायकों को सर्वोच्चता हासिल करने और जरूरत पड़ने पर दुनिया की रक्षा करने में मदद करने के लिए बनाई गई थी, जो केवल सर्वश्रेष्ठ में से सर्वश्रेष्ठ को नामांकित करती है। अनेस्ट फ्लेमिंग कर्तव्य की उच्च भावना वाली एक लड़की और अकादमी में शीर्ष छात्रा है, इसलिए उपनाम फ्लेम्स की महारानी प्राप्त करती है, जो एक दिन जीवंत लापरवाह नए स्थानांतरण छात्र ब्लेड से मिलती है। एक लड़का जो उसके बराबर लगता है, शक्ति कुछ ऐसा जो उसे वास्तव में परेशान करने वाला लगता है। तब द किंग द्वारा अनेस्ट से व्यक्तिगत रूप से अनुरोध किया गया था कि वो अपने प्रवास के दौरान अकादमी की देखरेख करे और ब्लेड को दिखाएं। कहानी नायक बनने की खोज में छात्रों के संघर्ष का वर्णन करती है। इतनी भागदौड़ के बाद दोपहर के भोजन का समय हो गया। गलियारे से नीचे चलते समय सभी ने एक जैसी वर्दी पहनी हुई थी।
आने जाने वाले सभी छात्र रास्ता रोके बिना सामान्य रूप से चलते रहे। फिलहाल कोई समस्या नहीं हुई, मैं किसी से बात कर सकता था। संक्षेप में, यह कोई ऐसा व्यक्ति था जिसके लिए साधारण शब्द लागू नहीं होता था। वो अपनी मुठ्ठियां भींचता रहा, वो और भी अधिक ध्यान आकर्षित कर रहा था। ये वास्तव में अद्वितीय है, यह असाधारण है। उसका नाम ब्लेड है, किसी कारण से इस स्कूल से संबंधित है। ये सबसे अच्छा है। विनम्र होना अच्छा है। इस जगह पर वास्तव में सामान्य लोग हैं। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसकी आंखों में सभी छात्र थे। अधिकांश छात्र जिन्होंने उसे देखा वो उससे दूर भाग गए। उनका उत्साह स्पष्ट था, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से छात्रों को घूर रहे थे। हालांकि मुझे आशा है कि वो कोई सामान्य व्यक्ति है, किसी तरह वो बहुत ध्यान देने योग्य बन गया है। लेकिन ब्लेड को इसका एहसास नहीं था। कुछ छात्र ब्लेड को देखने से बच नहीं सके, वे उत्सुक थे। 2 महिलाएं और 2 पुरुष। ऐसा लग रहा था कि उन्हें ब्लेड में दिलचस्पी है। वे दूर से देख रहे थे। ब्लेड को उसे देखने का एहसास हुआ। वो तुरंत उनके पास गया। ब्लेड ने तुरंत अपना हाथ उठाया और ऊर्जावान अभिवादन किया। नमस्ते, मैं हीरो हूँ, मैं ब्लेड हूँ। लगभग अनजाने में ही उसकी असली पहचान उजागर हो गई। ब्लेड ने तुरंत सुधार किया। हाँ, मंत्रमुग्ध आंखों में आंसू होने के बावजूद लड़कियों को जवाब मिला। हालांकि उसके लंबे काले बाल हैं और वो थोड़ी शर्मीली है, साथ ही उसका व्यक्तित्व भी बहुत सौम्य है। उसका नाम क्लेयर है। वो इसी स्कूल में पढ़ती है और निम्न स्तरीय कक्षाओं में है। मैं ब्लेड हूँ। ब्लेड जोर से चिल्लाया। उसका नाम फिर से कहा। अरे, क्लेयर ने पलकें झपकाना बंद नहीं किया। मैं ब्लेड हूँ। ब्लेड ने उसका नाम 3 बार कहा। उसका चेहरा एक लापरवाह बच्चे जैसा था। नमस्ते, मैं क्लेयर हूँ। क्लेयर, एक उज्ज्वल चेहरे के साथ एक बहुत ही मासूम हंसी प्रकट करते हुए। यह एक बच्चे की मुस्कान की तरह थी। क्लेयर अनजाने में वापस मुस्कुराई। ब्लेड ऐसे हंसा मानो वो पहली बार दोस्त बना रहा हो। वास्तव में ये पहली बार है जब आप अपनी ही उम्र के किसी व्यक्ति के साथ रहे हैं। ब्लेड, मैं दूसरों की ओर देखता हूँ। मेरा नाम जेसिका है। छोटे बालों वाली लड़की ने उसका स्वागत किया। क्लेयर और जेसिका, उसने उनके नाम दोहराए। मैं ब्लेड हूँ। ब्लेड फिर मुस्कुराया। अब आपने क्या कहा? आप किसी दिलचस्प व्यक्ति की तरह दिखते हैं। चारों धीरे धीरे हंसने लगे। मूल रूप से उनके मन में कुछ संदेह थे, लेकिन सभी को दूर कर दिया गया। मैंने 4 दोस्त बनाए। ब्लेड का दिल खुश था। नहीं, रुको, ब्लेड ने अचानक अपना मन बदल लिया। आमतौर पर दोस्त बनने के लिए आपको उन्हें समय समय पर देखना चाहिए, ठीक है? ये केवल 4 है। नहीं, ये पर्याप्त नहीं है। मुझे और दोस्तों की जरूरत है। हाँ, मुझे कितने लोग चाहिए? 10 लोग पर्याप्त होंगे? नहीं, रुकिए, कोई निष्कर्ष भी नहीं देना चाहिए। तो 100? क्या मुझे किसी आम व्यक्ति को दोस्त बनाना चाहिए? ब्लेड बहुत सी बातें सोच रहा था। आप वहाँ किस चीज में व्यस्त हैं? सभी छात्र आश्चर्यचकित हो गए। सभी ये देखने के लिए मुड़े कि क्या हुआ। थोड़ी देर बाद कोई ब्लेड की दृष्टि की रेखा पर आया। वो गंभीर चेहरे वाली लड़की थी। उसके बाल लाल हैं, मानो आग जल रही हो। साथ ही उनकी ड्रेस का रंग लाल था। अन्य सभी छात्रों ने एक जैसी पोशाक पहनी थी, लेकिन वह अकेली थी जिसने अलग अलग कपड़े पहने थे। उसने वहां मौजूद 4 लोगों और ब्लेड को घूर कर देखा। फ्लेमिंग अनेस्ट, वो स्कूल में सबसे अच्छे छात्रों में से एक है, लेकिन सभी छात्रों में सबसे डरावना भी है। ओह, महारानी है, जेसिका फुसफुसाई। ब्लेड को नहीं पता था कि क्या हो रहा है। अनेस्ट ने वो शब्द सुने। हालांकि उसका शरीर कांप रहा था। अनेस्ट था कि मैंने कुछ भी नहीं सुना। ब्लेड के चेहरे पर हैरानी भरी अभिव्यक्ति थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने कहा, महारानी, आपकी जो अभिव्यक्ति है और आप सभी छात्रों को देख रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि आप किसी प्रकार के सम्मानित छात्र होंगे, है ना? सभी आपके साथ सम्मान से पेश आते हैं और आपके कार्य कानून और व्यवस्था के अनुसार होते हैं। अनेस्ट ने कहा। चारों ने कर्तव्यनिष्ठा से सुना। ऐसा लगा जैसे कोई शिक्षक अपने छात्रों को डांट रहा हो। उसे चारों ओर देखकर ब्लेड को एहसास हुआ कि सभी छात्रों ने महारानी पर चर्चा की थी, लेकिन अनेस्ट फ्लेमिंग शिक्षक के बराबर छात्र थे। नहीं, अंतर बड़ा है। छात्र तो क्या, उनके शिक्षक भी इसका सम्मान करते हैं। हालांकि ब्लेड में उन सभी का वो सम्मान काम नहीं आया। एक और यह एक भयानक बड़ी बहन लग रही थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यह
सुपर महत्वपूर्ण प्रतीत होती है, जैसे कि यह एक ड्रैगन ओल्ड या कुछ और अधिक भयानक हो। कम से कम इस शहर में तो लोगों को इससे ज्यादा डर नहीं होना चाहिए। ब्लेड ने 4 लोगों और अर्नेस्ट को आश्चर्य से देखा। वह विद्यार्थी होनी चाहिए, शिक्षिका नहीं, ठीक है? हालांकि वह वर्दी में नहीं है। दरअसल अर्नेस्ट ने जो कहा था उसमें ब्लेड भी शामिल था, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा। उसने सोचा कि उसने केवल क्लेयर और अन्य लोगों को डांटा है। ब्लेड ने अर्नेस्ट को देखा, अभी भी सोच रहा था, लेकिन अचानक कुछ याद आया। अरे हाँ, मैं प्रिंसिपल के कार्यालय जाता हूँ। ब्लेड अर्नेस्ट ने उपदेश को बाधित किया। अर्नेस्ट गुस्से से देख रहा था, वो उसे मारना चाहती थी। आप कौन हैं? मैं नहीं देखा है। अर्नेस्ट सामा। क्लेयर अपनी उंगलियां पकड़ रहा था। उसका मतलब कुछ था। मुझे ऐसा मत बताओ। हाँ ठीक है, वो ब्लेड एक स्थानांतरित छात्र प्रतीत होता है। हेलो सब लोग, मेरे चैनल में फिर से आपका स्वागत है। यदि आप अब तक सामग्री का आनंद ले रहे हैं तो मैं वास्तव में आपके समर्थन की सराहना करूंगा। यदि आपको यह वीडियो मनोरंजक लगा हो तो कृपया लाइक बटन दबाने के लिए कुछ समय निकालें। यदि आपने पहले से नहीं किया है तो मेरे चैनल की सदस्यता लेने पर विचार करें। सदस्यता लेने से जब मैं नई वीडियो जारी करूंगा तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा और आप यहां हमारे अद्भुत समुदाय का हिस्सा बन जाएंगे। मुझे आपकी टिप्पणियां पढ़ना और आपके साथ बातचीत करना अच्छा लगता है, इसलिए नीचे एक टिप्पणी छोड़ना न भूलें। मुझे बताएं कि आप भविष्य की वीडियो में किन विषयों को शामिल होते देखना चाहेंगे, या यदि आपके कोई प्रश्न हैं। इसे देखने और मेरे साथ इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है और यह मुझे वो काम जारी रखने में मदद करता है जो मुझे पसंद है। तो लाइक बटन दबाएं, सदस्यता लें और आइए साथ मिलकर बढ़ते रहें। अगली बार तक अपना ख्याल रखिए और अद्भुत बने रहें। रोकुडू नो ONNATACHI एनिमी के साथ एक जंगली सवारी के लिए तैयार हो जाए। कहानी एक हाई स्कूल के छात्र रोकुडा का अनुसरण करती है, जो एक भीड़ मालिक की शक्ति प्राप्त करता है। अपनी नई शक्तियों के साथ वो अपने सहपाठियों के बीच लोकप्रिय हो जाता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, रोकुडा खुद को शक्तिशाली गिरोहों के बीच एक गहन लड़ाई के बीच पाता है। टूसुके रोकुडा एओमोरी हाई में भाग लेने वाला प्रथम वर्ष है, जो अपराधियों से भरा एक स्कूल है। उनके व्यवहार के साथ असंगति के कारण उन्हें अक्सर उनके सहपाठियों द्वारा धमकाया जाता है। केवल उनके 2 अच्छे दोस्त अपवाद हैं जो सामाजिक बहिष्कृत भी हैं। जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जाता है, उससे निराश होकर तीनों चाहते हैं कि वे खड़े हों और अपने सपनों के मजेदार, शांतिपूर्ण स्कूली जीवन का दावा करें। हालांकि टूसुके के जीवन में एक बड़ा मोड़ आता है जब उसे अपने स्वर्गीय दादा से एक पैकेज मिलता है जिसमें उनके परिवार की विरासत होती है। एक स्क्रॉल ने उसे आसन्न खतरे से बचाने की शक्ति रखने के लिए कहा। स्क्रॉल को पकड़ने पर एक अचानक चमक निकलती है जो टोसुके के माथे पर एक अजीब निशान छोड़ती है। ये सोचकर कि उसे अपने और अपने दोस्तों को अपने दैनिक उपचार से मुक्त करने का साधन मिल गया है, टूसुके ये जानकर हैरान रह गया कि इसके प्रभाव उसकी कल्पना से कहीं अलग हैं। हालांकि उसकी बदमाशी जारी है। उसे पता चलता है कि स्क्रॉल से निशान एक आकर्षण के रूप में काम करता है जो अपराधी लड़कियों के दिलों पर कब्जा कर लेता है, विशेष रूप से उन सभी में सबसे मजबूत रन्ना हिमावरी। एक्शन, कॉमेडी और रोमांस से भरपूर रोकुडू नो ओनाताची आपको अपनी सीट के किनारे पर रखेगी। तो कुछ पॉपकॉर्न लीजिए और इस एनिमे को बिंग देखने के लिए तैयार हो जाइए। अधिक एनिमे अपडेट के लिए सदस्यता लेना न भूलें। तो उस लाइक और सब्सक्राइब बटन को हिट करना न भूलें और देखने के लिए धन्यवाद। आपको कामिनाकी सेकाई नो कामिसामा कात्सुदा एनीमे के बारे में जानने की जरूरत है। युकितो के माता पिता एक पंथ के नेता हैं। बलिदान होने के बाद वो दूसरी दुनिया में पुनर्जन्म लेता है जहां धर्म मौजूद नहीं है और अश्लील किताबें एक बच्चे के डूडल के समान हैं। उसे पता चलता है कि यह भी एक ऐसी दुनिया है जहां आपकी जिंदगी और मौत का फैसला देश करता है। अपने दोस्त की फांसी में बाधा डालते हुए दोनों की जान चली जाती है। ठीक उसी क्षण उनके धर्म का देवता उनकी दुनिया में आता है और उन्हें पुनर्जीवित करता है।
यह एनीमे देवताओं के एक समूह के बारे में है जिन्हें मनुष्यों के लिए खुशियां लाने का काम सौंपा गया है। एनीमे रंगीन पात्रों और दिल छू लेने वाली कहानियों से भरी है। यदि आप स्लाइस ऑफ लाइफ एनीमे के प्रशंसक हैं, तो हम इसे देखने की अत्यधिक अनुशंसा करते हैं। तो आराम से बैठें और कामिनाकी देवताओं को आपके चेहरे पर मुस्कान लाने दें। तो उस लाइक और सब्सक्राइब बटन को हिट करना न भूलें और देखने के लिए धन्यवाद। Get ready for the dark and twisted world of Dead Mount Death Play anime. Based on the manga of the same name, the anime follows the story of a necromancer who is transported to another world, a world in which he becomes a zombie's mount. It's a showdown for the ages as the legendary hero takes on the corpse god Necromancer, but when the dust settles, something isn't quite right. In the final moments of their epic confrontation, the corpse god's final gambit shot was wholly unexpected: reincarnation magic. Across space and time, a boy named Polka Shinoyama awakens feeling not quite himself. Who could have expected that the climactic battle between good and evil would turn out like this? With stunning animation and intense action, Dead Mount Death Play is a must-watch for any anime fan looking for a unique and thrilling experience. So what are you waiting for? Dive into this darker side of anime today. Thanks for watching and make sure to subscribe for more anime recommendations. So, the next time you enjoy a video, show your support and hit that like button and don't forget to subscribe. Thanks for watching. Introducing Lookism Anime, the new anime series that is taking the world by storm. Based on the popular webtoon, Lookism follows the story of a boy who gains the ability to switch between two bodies, one handsome and the other not so much. Park Hyung-suk has spent all 17 years of his life at the bottom of the food chain. Short, overweight, and unattractive, he is used to being bullied by his classmates and constantly discriminated against for his looks. In an attempt to escape his biggest bully, Lee Tae-sung, he decides to transfer to Seoul's J1 High School, a vocational preparatory school notorious for its liberal education system and carefree students. Days before his transfer, Hyung-suk wakes to find that he is no longer in his usual chubby body, but is instead in a perfect body. Tall, handsome, and beautifully toned, Hyung-suk has become the ideal version of himself. The only problem is that his original body still lays beside him, and when one body falls asleep, he awakens in the other. Now possessing two extremely different bodies, Hyung-suk must learn to navigate his new and much more popular life at J-High whilst also solving the mystery of where his second, almost superhuman, body came from. As he navigates high school with this newfound power, he experiences the harsh realities of lookism and discrimination. With beautiful animation and an engaging story, Lookism Anime is a must-watch for anyone interested in social issues and anime. Don't miss out. Check it out now. So, the next time you enjoy a video, show your support and hit that like button and don't forget to subscribe. Thanks for watching. In case you're wondering what Isekai Shoukanyidome des anime is all about, here's a quick summary. This anime follows the story of a man who is summoned to a parallel world not once, but twice. However, the second time around, he decides to take a different approach and use his knowledge of the world to his advantage. There was once a man who was summoned to another world, and saved it. Of course, he became too popular there, and turned into an isekai normie. However, that man fell into a trap, and was forcibly returned to his original world. Moreover, he had to start over as a baby. This is the story of the way too fantastic ex-hero who lived as a gloomy high schooler, as he gets summoned once again to that same other world in a very unexpected development. The anime is categorized as an isekai, meaning another world, in Japanese. It's an increasingly popular genre in anime, with titles like Sword Art Online and Re:Zero also fitting the category. If you're a fan of anime and particularly enjoy isekai stories, this one may be worth checking out. And that's it for this brief explanation of Isekai Shoukanyidome des anime. See you in the next video.
So, the next time you enjoy a video, show your support and hit that like button and don't forget to subscribe. Thanks for watching. Introducing Isekai One-Tan Kill Nissan. Ain Douhan no Isekai Seikatsujimemashita, the anime that's taking the isekai genre by storm. It wasn't me who was the strongest in another world, but my sister. As a result of an accident in the real world, Asahi Ikasaba is transported to another world. He tries to enjoy the different world he imagined, but his abilities prove to be the weakest. Just as he's about to be attacked by a vicious monster, Asahi's doting elder sister Mayu comes into his rescue and saves him. Chasing after Asahi's love, Mayu too ended up in the same world as him, with the strongest of abilities and cheat skills. The fantasy tale of the strongest elder sister with a brother complex and the younger brother with the weakest skills begins. In this series, our protagonist Kaima wakes up in a fantasy world with his sister Kaidi. However, instead of being a traditional hero, their goal is to become the ultimate team in the card game, One-Tan Kill. Through intense training and strategy, Kaima and Kaidi work towards the goal of becoming the best in the game and living the ultimate isekai life. If you're a fan of isekai anime or just love a good underdog story, be sure to check out Isekai One-Tan Kill Nissan. Ain Douhan no Isekai Seikatsujimemashita. Show your support and hit that like button and don't forget to subscribe. Thanks for watching. Introducing Isekai de cheat skill wo te ni shita or wa, genjitsu sekai wo mo mosusuru. Level up wa jinsei wo kaeta, the anime you don't want to miss. This anime follows the journey of a high school student who gains special powers that allow him to enter a fantasy world. He soon discovers that his cheat skills work in this new world, and he becomes even stronger than before. A mysterious door stands open, inviting a boy who's been brutally bullied all his life to take a courageous step forward into the unknown. On the other side, he finds a hoard of priceless artifacts and a world as filled with magic as it is with monsters. The most shocking revelation, however, is that he can bring whatever he wants back with him when he returns to Earth. It won't be long before this double life changes him forever. With a mix of action, adventure, and comedy, this anime is perfect for anyone looking for a new world to explore. So, what are you waiting for? Check out Isekai de cheat skill wo te ni shita or wa, genjitsu sekai wo mo mosusuru.
Level up wa jinsei wo kaeta and join the adventure. Let's briefly discuss the anime. Tensei Kazoku no Isekai Bukanroku. Jiku wo Shiranai Kamigami no Shito. Teenager Shinya Kazuya died while saving young girls from an attacker, only to find himself reincarnated into a world of swords and magic. It was a dream come true. Though he remembers his life and knowledge of Earth, he is now Cain von Silford, the third son of an aristocrat. Being granted the protection of the gods on his 5th birthday turned out to be too much of a good thing for Cain. His stats and boosts are so powerful, he must hide his real abilities to climb the ranks of society as he descends into the darkest dungeons. The ultimate isekai adventure begins as a teen-turned-child is trapped in a beautiful kingdom he didn't create, but might one day rule. This is a classic isekai anime where a character is transported from their own world to a fantastical one. The main character is a powerful noble who, after dying, finds himself in a new world with magical powers and a new mission. The anime explores themes of revenge, justice, and self-discovery. The animation is great, the storyline is engaging, and the characters are well developed. If you're a fan of isekai anime and haven't seen this one yet, give it a watch. And that's it for today's topic. Thanks for watching. दुनिया औद्योगिक क्रांति के दौर से गुजर रही है, जब एक रहस्यमय वायरस से भयानक जीव निकलते हैं, जो अपनी कभी न खत्म होने वाली भूख को शांत करने के लिए इंसानों के मांस को चीरते हैं। इन प्राणियों को जिन्हें कबाने के नाम से जाना जाता है, मारने का एकमात्र तरीका उनके स्टीम लेपित दिलों को नष्ट करना है। हालांकि अगर इन राक्षसों में से किसी एक द्वारा काट लिया जाता है, तो पीड़ित को मौत से भी बदतर भाग्य का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गिरे हुए लोग एक बार फिर अपने साथी मरे हुए लोगों की श्रेणी में शामिल हो जाते हैं। केवल सबसे अधिक दृढ़ सभ्यताएं ही इस उथल-पुथल से बच पाई हैं, जैसा कि हिनोमोटो द्वीप के मामले में है, जहां मानव जाति ने कबाने की अंतहीन भीड़ से खुद को बचाने के लिए एक विशाल दीवार बनाई है। इन विशाल किलों में जाने का एकमात्र रास्ता भारी भरकम बख्तरबंद गाड़ियों से होकर जाता है, जिनकी सेवा और निर्माण इकोमा जैसे युवाओं द्वारा किया जाता है। एक घातक हथियार बनाने के बाद, जिसके बारे में उनका मानना कि यह काबिन के दिलों को आसानी से भेद देगा, इकोमा उत्सुकता से उस दिन का इंतजार कर रहा है जब वह अपने नए आविष्कार का उपयोग करके लड़ने में सक्षम होगा। हालांकि उसे कम ही पता है कि उसका मौका उसकी अपेक्षा से कहीं जल्दी आएगा। सभी को नमस्कार। आज हमारे पास आपके लिए एक रोमांचक वीडियो है। हम कनोजो ओकाराशिमासु के तीसरे सीजन में उतरेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम इसमें शामिल हों, सुनिश्चित करें कि आपने सदस्यता बटन दबाया है और अधिसूचना घंटी बजाई है ताकि आप कभी न चूके हमारी नवीनतम कंटेंट पर। यदि आप यहाँ नए हैं तो अधिक कंटेंट के लिए सदस्यता लेने पर विचार करें। ठीक है, चलो शुरू करें। कनोजो ओकाराशिमासु रेंट ए गर्लफ्रेंड एक एनीमे श्रृंखला है जो एक कॉलेज छात्र काजुया की नुशिता पर केंद्रित है, जो अपने ब्रेकअप के बाद के अकेलेपन से निपटने के लिए चिजुरू मिजुहारा नामक एक प्रेमिका को किराए पर लेता है। एनीमे के तीसरे सीजन में काजुया और चिजुरू के बीच रोमांटिक तनाव विकसित होता रहता है, क्योंकि वे एक दूसरे के लिए अपनी जटिल भावनाओं को नेविगेट करते हैं। ये सीजन उनके व्यक्तिगत विकास, चुनौतियों और उन क्षणों का पता लगाता है जो उन्हें एक साथ करीब लाते हैं। कहानी पात्रों की भावनाओं को गहराई से उजागर करती है, उनके संघर्षों, आशाओं और उनके रिश्तों की उभरती गतिशीलता को प्रदर्शित करती है। जैसे जैसे कहानी सामने आती है, दर्शकों को हास्य, दिल छू लेने वाले क्षणों और अप्रत्याशित मोड़ों से भरी यात्रा पर ले जाया जाता है, जिससे यह उनकी रोमांटिक यात्रा का एक सुखद सिलसिला बन जाता है। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इस वीडियो का आनंद लिया है तो इसे लाइक करना ना भूलें और इस तरह की और कंटेंट लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अधिसूचना घंटी भी दबाएं ताकि आप कभी भी कोई अपडेट न चूकें। मुझे पसंद है आपकी कमेंट्स, इसलिए नीचे मुझे बताएं कि आपने इस वीडियो के बारे में क्या सोचा। अगली बार तक अपना ध्यान रखिए और अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, हमारे चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हम पुनर्जन्म एनीमे की आकर्षक दुनिया में गोता लगा रहे हैं। यदि आप दूसरे अवसरों, नए जीवन और महाकाव्य रोमांच के प्रशंसक हैं, तो आप एक उपहार के लिए तैयार हैं। सदस्यता लेना सुनिश्चित करें और उस अधिसूचना घंटी को दबाएं ताकि आप हमारी एनीमे अनुशंसाओं में से कोई भी न चूकें। आइए हमारी शीर्ष 5 चल रहे पुनर्जन्म एनीमे के साथ शुरुआत करें। ये सचाइना टेंसे स्वीट रीइंकार्नेशन। एक होनहार पेस्ट्री शेफ की मृत्यु हो जाती है और वो दुनिया की सबसे बड़ी पेस्ट्री बनाने के अपने सपने को पूरा किए बिना ही दुनिया छोड़ देता है। लेकिन जब उसे एक और मौका दिया जाता है,
तो वो 9 वर्षीय पेस्ट्री मिल मोटेलिन के रूप में पुनर्जन्म लेता है, जो इस दूसरी बार सफल होने के लिए दृढ़ है। हालांकि उसका जीवन उसके व्यवहार जितना मधुर नहीं होगा, क्योंकि उसे जादुई दुनिया में अपरिचित कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अपनी आजीवन इच्छा के करीब एक कदम आगे बढ़ने के लिए पेस्ट्री को सीखना होगा कि कैसे लड़ना है, अपने मिष्ठान ज्ञान का उपयोग करना और रास्ते में जादू की खोज करना। टेंसी 2 इसे कई तरह हान की डासू। एक 34 वर्षीय व्यक्ति बेरोजगार, शट इन और नीट, एक निश्चित दिन पर घर से बाहर निकाले जाने के बाद एक यातायात दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। या ऐसा उस व्यक्ति ने सोचा। जैसे ही उसने ये सोचा, अचानक उसका तलवारों और जादू की दुनिया में रूडियस के रूप में पुनर्जन्म हो गया। अपने पिछले जीवन के ढेर सारे पछतावे और अनुभव के साथ वो इस बार अपना जीवन ईमानदारी से जीने की कसम खाता है। विभिन्न लोगों से मिलना, विभिन्न जादू प्रशिक्षण। अब विकसित रूडियस वास्तव में कठोर और क्रूर यात्रा पर निकल रहा है, जैसे कि टेलीपोर्टेशन घटना जिसमें उसका गृहनगर, फितुआ क्षेत्र और अन्य विभिन्न कहानियां शामिल हैं। कई कठिनाइयों का सामना करने और सफलतापूर्वक घर आने के बाद रूडियस अपनी प्यारी एरिस के साथ एक हो गई। हालांकि अगली सुबह एरिस के अचानक गायब होने का एहसास होने पर रूडियस को भारी झटका लगा। उसने सब कुछ त्याग दिया था और पिछली दुनिया की तरह ही अपने शट इन और नीट स्व में वापस लौट आया था। अफसोस, टेलीपोर्टेशन घटना के कारण उनके परिवार में खोए हुए एकमात्र व्यक्ति के रूप में उनकी मां जेनेट अभी तक नहीं मिली है। अब वो जेनेट को ढूंढने के लिए कृतसंकल्प है और रूडियस एक बार फिर अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। एनीमे श्रृंखला का दूसरा सीजन हल्के उपन्यास के 7वें खंड को रूपांतरित करता है। अब एक बड़ा किशोर रूडियस अपनी लापता मां की तलाश में अकेले दुनिया की यात्रा करता है। एपिसोड 0 पिछले सीजन के मध्य में जादुई संकट के बाद उसकी बचपन की दोस्त सिल्फी के ठिकाने पर केंद्रित है, जिसके परिणामस्वरूप उसे ले जाया गया था। ईडीओ यूनिक स्किल एसएआई के वाईओयू सुरियुता सातो, जिनके एक काली कंपनी में अधिक काम करने के कारण मृत्यु हो गई, का दूसरी दुनिया में पुनर्जन्म हुआ। हालांकि रियुटा जीवित था, अब वो इस असुविधा के बोझ तले दब गया था कि इस नई दुनिया में उसका स्तर 1 पर तय हो गया है। हालांकि वो अपना स्तर बढ़ाने में सक्षम नहीं था, लेकिन उसके पास एक अद्वितीय कौशल था जो राक्षसों से एक धोखा जैसी वस्तु बना सकता था जो दुनिया में मौजूद नहीं होनी चाहिए। ये जानते हुए उसने क्षमता बढ़ाने वाली वस्तुओं की मदद से अपने आंकड़े अधिकतम किए और उसने कई हथियार और वस्तुएं इकट्ठी की जिनका उपयोग केवल वही कर सकता था, जिससे उसके पास स्तर 1 होने के बावजूद सबसे मजबूत आंकड़े और गियर थे। लिटिल स्टोरी रियोटा तेलुगु कालकोटरी में जागता है, जहां एमिली नाम का एक युवा साहसी उसे सूचित करता है। किसी तरह वो लूट का सामान था जिसे उसने अभी अभी मारा था। वो बताती है कि इस दुनिया में राक्षस लूट की वस्तुओं से लेकर शक्तिशाली जादुई हथियारों से लेकर रोजमर्रा के किराने के सामान तक सब कुछ इकट्ठा किया गया है। मूल्य शिकारियों द्वारा कौशल स्तर एकत्रित करके निर्धारित किया जा रहा है। रियोटा पाता है कि केवल स्तर 1 होने के बावजूद उसके सभी संग्रहकर्ता कौशल एस स्तर से ऊपर हैं। वो एक टीचर को मारता है और यह एमिली की तुलना में अधिक बीन स्प्राउट्स गिराता है। ये पुष्टि करता है कि उसके द्वारा अर्जित प्रत्येक ड्रॉप आइटम का एस स्तर का मूल्य होगा। रियोटा एक छोटे से अपार्टमेंट को किराए पर लेने के लिए बीन स्प्राउट्स से पर्याप्त पैसा कमाता है और बेकर एमिली को उसकी दयालुता का बदला चुकाने के लिए रहने के लिए आमंत्रित करता है। INOGENKYOU to Naru SAIKYOUGEDOU लास्ट बॉस JOU वाटामिनो टेम नीटी SUKUSHIMASU। हम एक शानदार एनीमे में गोता लगा रहे हैं जो बहुत चर्चा पैदा कर रहा है। हिगेकी नो जैंक्यो टू नारू सेक्यो गेदो लास्ट बॉस जो वाटामिनो टेम नियसुकुशिमासु। एक मनोरम काल्पनिक दुनिया में डूबने के लिए तैयार हो जाइए, जहां सबसे शक्तिशाली खलनायिका, जिससे कभी सभी लोग डरते थे, अब लोगों की खातिर अपनी ताकत का इस्तेमाल करने की कसम खाती है। प्राइड रॉयल आईवी ओटोम गेम टू ए बीम ऑफ लाइट विद यू में अंतिम बॉस और हर तरह का मेल है। उसने अनगिनत अपराध किए, अपने दत्तक भाई को एक आत्मा बंधनकारी अनुबंध में गुलाम बनाने से लेकर घर में नौकरों के खिलाफ अपने पद का दुरुपयोग करने तक। संक्षेप में, वो शुद्ध बुराई की खलनायिका है। जापान में एक सामान्य हाई स्कूल का छात्र राजकुमारी प्राइड के 8 वर्षीय शरीर में पुनर्जन्म लेता है। व्यवसाय का पहला क्रम, एक और दिन देखने के लिए जीवित रहे। अपनी धोखेबाज जैसी क्षमताओं का उपयोग करके वो अपने पिता को बचाने, राज्य को बचाने और एक दयालु और परोपकारी शासक बनने का संकल्प लेती है। और इसलिए गौरव अपनी किस्मत बदलने का संकल्प लेती है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। लेकिन ये सब गंभीर मामला नहीं है। कुछ प्रफुल्लित करने वाले क्षणों के लिए खुद को तैयार रखें, क्योंकि हमारी सशक्त रानी अपनी नई भूमिका की चुनौतियों का सामना करती है, जिसके परिणाम अक्सर हास्यास्पद होते हैं। जैसे जैसे रहस्य खुलते हैं और गठबंधन बनते हैं, आप खुद को अपनी सीट के किनारे पर पाएंगे और प्रत्येक एपिसोड का बेसब्री से इंतजार करेंगे कि कहानी कैसे विकसित होती है। यदि आप फैंटेसी, मजबूत चरित्रों और अप्रत्याशित मोड़ों के प्रशंसक हैं,
तो हिगेकी नो जेंक्यो तो नारू सेक्यो गेदो लास्ट बॉस जो वातमी नो तम नी सुकुशिमासु निश्चित रूप से आपके लिए अवश्य देखने लायक है। I was reborn as a vending machine, wandering in the dungeon। एक ऐसी दुनिया के लिए जो किसी अन्य जैसी नहीं है। मंत्रमुग्ध एनीमे श्रृंखला जिधर हनबाई नी उम्र क्वाटा और वा में क्यूबो समायो में रहस्य, रोमांच और आत्मखोज की यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो जाइए। एक ऐसे ब्रह्मांड में जहां वास्तविकता और कल्पना के बीच की रेखाएं धुंधली हो गई है, हम एक युवा व्यक्ति की असाधारण कहानी का अनुसरण करते हैं जो खुद को एक जीवित वेंडिंग मशीन के रूप में पुनर्जन्म लेता है। लेकिन ये कोई साधारण वेंडिंग मशीन नहीं है। हमारा नायक रहस्यों, चुनौतियों और अप्रत्याशित मुठभेड़ों से भरी एक भूल भुलैया वाली दुनिया में प्रवेश करता है। जैसे ही वे कालकोठरी और भूल भुलैया से गुजरेंगे, वे अपने अद्वितीय पुनर्जन्म के पीछे की सच्चाई को उजागर करेंगे। दिल को छू लेने वाले एक्शन, दिल छू लेने वाली दोस्ती और हास्य की तड़का के लिए तैयार हो जाइए जो आपको और अधिक के लिए वापस आने पर मजबूर करेगा। इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने इस वीडियो का आनंद लिया है और एनीमे की सभी चीजों पर अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना और अधिसूचना घंटी बजाना न भूलें। समीक्षाओं, चरित्र विश्लेषण और बहुत अधिक रोमांचक एनीमे चर्चाओं के लिए बने रहें। यदि आपके पास कोई सुझाव या विचार हैं तो बेझिझक उन्हें नीचे कमेंट में छोड़ दें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे रोमांच को बढ़ावा देती है। अगली बार तक साथी खोजकर्ता असाधारण को अपनाते रहे। अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा। फिर से स्वागत है। आज हमारे पास आपके साथ साझा करने के लिए वास्तव में कुछ खास है। हम एक अनोखे और मनमोहक शो में गोता लगा रहे हैं जो मनोरंजन की दुनिया में धूम मचा रहा है। इसे यूमेमिरू दंशीवा जेंजित्सु कहा जाता है और यह आपके द्वारा पहले देखी गई किसी भी चीज से भिन्न है। अब आप सोच रहे होंगे कि वास्तव में यूमेमिरू दंशीवा जेंजित्सु क्या है। ठीक है, मैं इसे आपके लिए तोड़ देता हूँ। वतरू सजॉक जो अपनी खूबसूरत सहपाठी आइका नत्सुकावा से बेहद प्यार करता है, अपने आपसी प्यार के बारे में सपने देखते हुए बिना निराश हुए उससे संपर्क करता है। हालांकि एक दिन वह यह सोचते हुए उठा, मैं वास्तव में उसके जैसे अच्छे व्यक्ति के साथ रहने के लायक नहीं हूँ। हो उद्धरण चिन्ह। यह एहसास होने पर वतरू ने उससे उचित दूरी बनानी शुरू कर दी, जिससे आइका को बहुत आश्चर्य हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि वह अब मुझसे नफरत करता हो? क्या उसके इरादे गलत हो गए थे क्योंकि वह गलत निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद अधीर हो रही थी? यह दो लोगों के इर्द गिर्द घूमती एक रोमांटिक कॉमेडी की शुरुआत है जो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते हैं और दोनों सोचते हैं कि उनका प्यार एक तरफा है। तो चाहे आप जापानी नाटकों के अनुभवी प्रशंसक हों या इस शैली में नए हों, यूमेमिरू दंशीवा जेंजित्सु एक ऐसा शो है जो आपकी वॉचलिस्ट में जोड़ने लायक है। मुझ पर भरोसा करें, आप निराश नहीं होंगे। ठीक है, यूमेमिरू दंशीवा जेंजित्सु के आज के परिचय के लिए बस इतना ही। यदि आप इस मनोरम श्रृंखला में शामिल होने के लिए उत्साहित हैं तो लाइक बटन दबाएं, अधिक रोमांचक कंटेंट के लिए सदस्यता लें और नीचे कमेंट पर अपने विचार साझा करना न भूलें। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद और अगली बार तक देखने का आनंद लें। अरे एनीमे उत्साही, हमारे चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हमारे पास आपके लिए कुछ खास है। वेंड्रेट की मनोरम दुनिया में एक गहरा गोता टेडाओ है। यदि आप अंतरिक्ष ओपेरा, मेचा लड़ाइयों और महाकाव्य रोमांच के प्रशंसक हैं तो आप एक उपहार के लिए तैयार हैं। वेंड्रेट टेडाओ है एक रोमांचक एनीमे है जो आपको एक अविस्मरणीय यात्रा पर ले जाने के लिए बाध्य है। आइए बुनियादी बातों से शुरू करें। ये श्रृंखला हिबिकी टोकाई की कहानी पर आधारित है, जो एक युवा व्यक्ति है जो खुद को अंतरिक्ष यान निर्माण पर सवार पाता है, जो कि विशेष रूप से महिलाओं द्वारा संचालित जहाज है। लेकिन दोस्तों, ये आपका विशिष्ट हरम एनीमे नहीं है। जहाज पर एक रहस्यमय दुश्मन द्वारा हमला किया जाता है और तभी असली रोमांच शुरू होता है। वेंड्रेट टाइडो है कुछ सबसे तीव्र मेचा लड़ाइयों का दावा करता है जिन्हें आपने कभी देखा होगा। अद्वितीय मेघ, शानदार एनिमेशन और रणनीतिक लड़ाई का संयोजन आपको अपनी सीट के किनारे पर रखेगा। लेकिन ये सब कार्रवाई के बारे में नहीं है। ये श्रृंखला मित्रता, समझ और मानव होने का क्या अर्थ है जैसे विषयों पर गहराई से प्रकाश डालती है। चरित्र विकास उत्कृष्ट है और आप स्वयं को निर्वाण के दल के प्रत्येक सदस्य से जुड़ा हुआ पाएंगे। अब बात करते हैं एनिमेशन की। कला शैली सर्वोच्च है और अंतरिक्ष वातावरण लुभावने है। रचनाकारों ने इस भविष्य की दुनिया को तैयार करने में बहुत प्रयास किया है और इसका वास्तव में फल मिला है। और कुछ यादगार उद्धरणों के बिना एनीमे क्या है? वेंड्रेट टेडाओ ने कुछ विचारोत्तेजक पंक्तियां प्रस्तुत की हैं जो श्रृंखला समाप्त होने के बाद भी लंबे समय तक आपके साथ रहेंगी। तो क्या आप इस अंतरिक्ष साहसिक यात्रा पर जाने के लिए तैयार हैं? यदि आपने पहले ही वेंड्रेट टेडाओ देख लिया है तो नीचे टिप्पणी में अपने विचार साझा करें, और यदि आपने नहीं किया है
तो इसे अपनी वॉच लिस्ट में जोड़ने का समय आ गया है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अधिसूचना घंटी को दबाना न भूलिए ताकि आप हमारी एनीमे समीक्षाओं और अनुशंसाओं से कभी न चूके। शामिल होने के लिए धन्यवाद और हम आपको अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक एनीमे टेस्टिक बने रहें। भावनाओं और सुंदर कहानी कहने से भरी यात्रा में एनीमे उत्साही लोगों का स्वागत है। आज हम आपके सामने एक उत्कृष्ट कृति प्रस्तुत करते हैं जो आपके दिलों को गहराई से छू जाएगी। द टनल टू समर, द एग्जिट ऑफ गुड बाय से मंत्रमुग्ध होने के लिए तैयार हो जाए। यह प्यार, दोस्ती और हमारे जीवन को आकार देने वाले खट्टे मीठे पलों की कहानी है। ऐसी दुनिया में जहां हर मुठभेड़ एक स्थायी प्रभाव छोड़ती है, हमारे नायकों का अनुसरण करें क्योंकि वे जीवन की भूल भुलैया को पार करते हैं। प्रत्येक कदम उन्हें एक अविस्मरणीय गर्मियों के करीब ले जाता है। लेकिन याद रखें, हर सुरंग का एक निकास होता है और अलविदा हर यात्रा का एक हिस्सा है। द टनल टू समर, द एग्जिट ऑफ गुड बाय शुरुआत और विदाई दोनों में सुंदरता की पड़ताल करती है। काओरू टोनो ने एक अफवाह सुनी, अंतरिक्ष और समय के नियमों का उराशिमा सुरंग के लिए कोई मतलब नहीं है। यदि आप इसे पा लेते हैं तो आगे बढ़िए और आप अपने दिल की इच्छा को दूसरी तरफ पाएंगे। ... अपने जीवन के वर्षों के बदले में एक रात कोरू ने खुद को एक सुरंग के सामने खड़ा पाया जो संदिग्ध रूप से वैसी ही दिखती है जैसी अफवाह में बताई गई है। वह खुद को करीन के बारे में सोचता हुआ पाता है जिस बहन को उसने 5 साल पहले एक दुर्घटना में खो दिया था। कोरू को आश्चर्य हुआ जब उसका पीछा नई स्थानांतरण छात्रा अंजू हनाकी ने किया जो उसे रहस्यमय सुरंग के साथ प्रयोग करने में मदद करने का वादा करती है, लेकिन बदले में वह कोरू से क्या चाहती है और उसके साथ सुरंग बनाने के बाद उसके पास देने के लिए क्या बचेगा। यह एनीमे एक दृश्य कृति है जिसमें लुभावनी एनिमेशन और एक साउंड ट्रैक है जो आपकी आत्मा को झकझोर देगा। सदस्यता लेना और अधिसूचना घंटी को दबाना न भूलें ताकि आप इस मनमोहक यात्रा का एक भी क्षण न चूकें। एक भावनात्मक रोलर कोस्टर पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाए क्योंकि हम द टनल टू समर, द एग्जिट ऑफ गुड बाय में गोता लगा रहे हैं। इस साहसिक कार्य में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। नमस्कार एनीमे प्रशंसकों, और एक रोमांचक साहसिक कार्य में आपका स्वागत है जो आपके दिल को रोमांचित कर देगा। कोई संटो के लिए तैयार हो जाए, एक एनीमे जो रोमांचकारी एक्शन, दिल दहला देने वाले रोमांस और महाकाव्य लड़ाइयों को जोड़ती है जो आपको अपनी सीट के किनारे पर छोड़ देगी। हमारे निडर नायकों की यात्रा का अनुसरण करें क्योंकि वे प्यार और भावनाओं के जटिल दायरे में रहते हुए अपनी दुनिया को अंधेरी ताकतों से बचाने के लिए लड़ते हैं। ये 26वीं सदी में एक त्वरित छलांग है जहां 21वीं सदी के पुनर्निर्मित शहर की एक स्कूल यात्रा किशोर शिनिची के लिए एक जंगली साहसिक कार्य में बदल जाती है। एक बात करने वाले हिरण का पीछा करते समय जो उसका बैग चुरा लेता है, वह एक अजीब लड़की से मिलता है जो पीछा करने वाले अजनबी लोगों से भी बचने की कोशिश कर रही है और फिर चीजें वास्तव में जंगली हो जाती हैं। यह अतीत के एक शहर में एक पागलपन भरी यात्रा है क्योंकि 2 युवा लोग एक नए भविष्य का मौका खोजते हैं। स्रोत द एनीमे नेटवर्क। जो चीज कोई संटो को अलग करती है वह इसका शानदार एनिमेशन है जो हर लड़ाई और हर हार्दिक क्षण को सजीव विवरण के साथ जीवंत कर देता है। लेकिन वह सब नहीं है। कोई संटो पारंपरिक एनीमे कथा पर एक अनोखा मोड़ पेश करता है जिसमें रोमांस के साथ अलौकिकता का मिश्रण इस तरह किया जाता है कि आप अंत तक अनुमान लगाते रहेंगे। सदस्यता लेना सुनिश्चित करें और अधिसूचना घंटी को दबाएं ताकि आप इस महाकाव्य यात्रा से न चूकें। भावनाओं, एक्शन से भरपूर लड़ाइयों और कोई संटो में किसी अन्य जैसी प्रेम कहानी के रोलर कोस्टर के लिए खुद को तैयार करें। हम इस अविश्वसनीय एनीमे को आपके साथ साझा करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। नमस्ते साथी, एनीमे उत्साही हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फर्स्ट किस की मनमोहक दुनिया में गोता लगा रहे हैं। एक ऐसा एनीमे जो दिलों की धड़कन बढ़ा देता है और भावनाओं को बढ़ा देता है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां दोस्ती का परीक्षण किया जाता है, नीति आपस में जुड़ी होती है और भावनाएं अनियंत्रित होती है। यह एनीमे हमें अपने सम्मोहक पात्रों के जीवन के माध्यम से एक रोमांचक रोलर कोस्टर सवारी पर ले जाता है। फर्स्ट किस जियान लैन की हृदयस्पर्शी कहानी पर प्रकाश डालता है जो एक बड़ी बहन की आड़ में सभी द्वारा उपेक्षित एक परेशान आत्मा गुची को गले लगाती है और उसका पालन पोषण करती है। गुची के जीवन के अंधेरे में जियान लैन प्रकाश की किरण बन जाती है, धीरे धीरे उसकी दुनिया में गर्मजोशी और प्यार ला रहा है। जैसे जैसे उनका बंधन गहरा होता है, गुची खुद को इस खूबसूरत और देखभाल करने वाली बहन के प्यार में पड़ने लगता है। हालांकि बड़ा सवाल उठता है, क्या उनका अंतर दोनों के बीच पनपते स्नेह के लिए एक दुर्गम बाधा के रूप में खड़ा होगा? उन्हें क्या उनका रिश्ता सामाजिक मानदंडों और अपेक्षाओं को पार कर सकता है?
जैसे ही गुची अपने प्यार को कबूल करने का साहस जुटाता है, मजबूत इरादों वाली और सुरक्षात्मक बहन उसकी हार्दिक घोषणा का जवाब कैसे देगी। फर्स्ट किस एक मार्मिक कहानी है जो इस ओर इशारा करती है प्यार, साहचर्य और रिश्तों की जटिलताओं की नाजुक बारीकियां। जैसे जैसे पारिवारिक बंधन और रोमांटिक भावनाओं के बीच की रेखाएं धुंधली होती जा रही है, कहानी कोमल क्षणों और भावनात्मक रहस्योद्घाटन के साथ सामने आती है। प्यार की जटिलताओं की खोज करती है जिसकी कोई सीमा नहीं है और पारंपरिक को चुनौती देने के लिए आवश्यक साहस की खोज करती है। फर्स्ट किस का एनिमेशन बेहद लुभावना है। जीवन परिदृश्यों से लेकर भावनात्मक रूप से उत्साहित क्षणों तक हर फ्रेम एक दृश्य आनंद है। कला शैली कहानी के सार को पकड़ती है, पात्रों द्वारा महसूस की गई हर भावना की गहराई को बढ़ाती है। और चलो संगीत के बारे में बात करते हैं। साउंड ट्रैक प्रत्येक दृश्य के भावनात्मक प्रभाव को बढ़ाता है, आपके दिलों को छूता है और आपको कहानी में और भी गहराई तक डुबो देता है। मुझ पर भरोसा करें, एपिसोड खत्म होने के काफी देर बाद तक आप खुद को ये धुनें गुनगुनाते हुए पाएंगे। अंततः फर्स्ट किस केवल उस प्रतिष्ठित क्षण के बारे में नहीं है, यह दोस्ती, आत्मखोज और किशोरावस्था के साथ आने वाली भावनाओं के उतार चढ़ाव के बारे में है। रोमांस, ड्रामा और अविस्मरणीय क्षणों के मिश्रण के लिए तैयार हो जाए जो आपको पहले एपिसोड से बांधे रखेगा। तो इस अविश्वसनीय यात्रा को न चूकें। उस सदस्यता बटन को दबाएं और सूचनाएं चालू करें क्योंकि हम फर्स्ट किस में गहराई से गोता लगा रहे हैं। मुझ पर भरोसा करें, आप एक भी क्षण चूकना नहीं चाहेंगे। अगली बार तक एनीमे प्रेमी, एनीमे उत्साही, एनीमे दुनिया में आपका फिर से स्वागत है। एनीमे की सभी चीजों के लिए अंतिम गंतव्य। आज हम जादू, रोमांच और आश्चर्यचकित कर देने वाली पोशाकों से भरे एक मंत्रमुग्ध कर देने वाले क्षेत्र में गोता लगा रहे हैं। जब हम द लेजेंड ऑफ मैजिक आउटफिट की खोज करेंगे तो मंत्रमुग्ध होने के लिए तैयार हो जाए। ऐसी दुनिया में जहां जादू का बोलबाला है, प्राचीन मंत्रों के रहस्यों को उजागर करना, पौराणिक प्राणियों का सामना करना और निश्चित रूप से एनीमे दुनिया में अब तक देखी गई कुछ सबसे असाधारण पोशाकें पहनना। द लीजेंड ऑफ मैजिक आउटफिट का एनिमेशन किसी लुभावनी से कम नहीं है। प्रत्येक फ्रेम कला का एक नमूना है जो इस काल्पनिक ब्रह्मांड को जीवंत रंगों और विवरणों पर सावधानीपूर्वक ध्यान देने के साथ जीवंत बनाता है। किंग ल्यू अकादमी मैजिक आर्मी महाद्वीप में सबसे शानदार जादू अकादमी हुआ करती थी। हालांकि अकादमी के पुराने डीन द्वारा क्रेन के 07 पश्चिम की ओर यात्रा करने के बाद उन्हें एक आपदा का सामना करना पड़ा। उन पर पूर्व गद्दार मोतियानिक सियोनेक के नेतृत्व में मजबूत लोगों के एक समूह द्वारा हमला किया गया था और अकादमी की विरासत खो गई थी। 7-8 और शहर प्रांगण की किंग ल्यू जादुई पोशाक भी खो गई। तब से किंग ल्यू अकादमी को अन्य अकादमियों द्वारा प्रताड़ित किया गया है और इसका और अधिक पतन हो गया है। ये देखते हुए कि अकादमी खतरे में है, एक प्रशिक्षु ही किंग ल्यू, जो कि किंग ल्यू अकादमी का बहुत करीबी है, अकादमी में शामिल हो गया और उसने किंग ल्यू अकादमी को वापस शीर्ष जादू कोर्ट में ले जाने की धमकी दी। किंग ल्यू कॉलेज के लिए पूर्व सर्वोच्च गौरव पुनः प्राप्त करने के लिए। स्वाभाविक रूप से विभिन्न कॉलेजों के पसंदीदा बेटे ये किंग ल्यू को ऐसा अवसर नहीं देंगे। उन्होंने एक के बाद एक कमजोरों को धमकाया, ली किंग ल्यू को पद से हटाने की कोशिश की, लेकिन ली किंग ल्यू ने उन सभी पर कदम रखा और अंत में किंग ल्यू मैजिक क्लॉथ हासिल कर लिया। महाविद्यालयों द्वारा विभाजित और आए पात्रों को न भूलें। बुद्धिमान और रहस्यमय गुरुओं से लेकर करिश्माई और दृढ़ निश्चयी नायकों तक प्रत्येक को विशिष्ट रूप से तैयार किया गया है। आप खुद को उनकी कहानियों, उनके संघर्षों और निश्चित रूप से उनके अविश्वसनीय परिधानों में निवेशित पाएंगे। लेकिन कुछ उतार चढ़ाव के बिना एक महाकाव्य कहानी क्या है? द लीजेंड ऑफ मैजिक आउटफिट अप्रत्याशित कथानक विकास के साथ आपको अपनी सीट से बांधे रखता है, जिससे आप और अधिक के लिए तरस जाएंगे। मुझ पर भरोसा करें, आप इनमें से कुछ को आते हुए नहीं देखेंगे। तो साथ ही एनीमे उत्साही, यदि आप एक ऐसे साहसिक कार्य के लिए तैयार हैं जो शानदार पोशाकों के साथ कल्पना के जादू को जोड़ता है, तो द लीजेंड ऑफ मैजिक आउटफिट अवश्य देखना चाहिए। जादू को देखने से न चूके, उस सदस्यता बटन को दबाएं, इस वीडियो को एक अंगूठा दें और जादू शुरू करें। आज इस जादुई यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक एनिमेटेड बने रहें। हेलो साथी एनीमे और मंगा उत्साही, एनीमे दुनिया में आपका पुनः स्वागत है। आज हम अगेंस्ट द गॉड्स की मनोरम दुनिया में गोता लगा रहे हैं, जो हल्के उपन्यासों और वेब उपन्यासों की दुनिया में ही छिपा हुआ रत्न है। आप में से जो लोग अगेंस्ट द गॉड्स में नए हैं, उनके लिए ये कल्पना, एक्शन और रोमांच का एक रोमांचक मिश्रण है। हमारा मुख्य नायक यूजी कोई साधारण नायक नहीं है।
वो प्रतिशोध की तलाश में है और उसकी यात्रा उसे अकल्पनीय स्थानों पर ले जाएगी, उसकी शक्ति की सीमाओं को पार कर जाएगी, क्योंकि वह अंधेरे रहस्यों को उजागर करेगा और दुर्जय दुश्मनों का सामना करेगा। स्टोरी: एक लड़के का कई लोगों द्वारा पीछा किया जा रहा है क्योंकि उसके पास अकेले ही किसी प्रकार का खजाना है। वो उनमें से किसी को भी इसे हासिल न करने देने के लिए एक चट्टान से कूद जाता है और दूसरी दुनिया में उसी नाम के एक लड़की के शरीर में जाग जाता है। सौभाग्य से उसने वह खजाना अपने पास रख लिया है जिसे वह लेकर भागा था। युनचे अपने पिछले जीवन की सभी यादों के साथ दूसरी दुनिया में जागता है। उसके पास अभी भी स्काई पॉइजन पल है, जो 7 ईश्वरीय कलाकृतियों में से एक है, जो अपनी जहर पैदा करने और उपचार करने की क्षमताओं के लिए जानी जाती है। लेकिन वहां से वह अपने कथित पुनर्जन्म के पीछे के रहस्य को उजागर करना शुरू करता है और अपनी वास्तविक उत्पत्ति का पता लगाता है। साथ ही पूरे महाद्वीप में सबसे मजबूत अभ्यासी बनने के लिए कड़ी मेहनत करता है। जो चीज अगेंस्ट द गॉड्स को अलग करती है वह है इसकी मनमोहक कथानक, जटिल शक्ति प्रणालियां और जिस तरह से यह मुक्ति, प्रेम और बलिदान के विषयों की खोज करती है। साथ ही श्रृंखला में अविश्वसनीय पात्र हैं जो इस दुनिया को जीवंत बनाते हैं। यदि आप महाकाव्य रोमांचों, जटिल पात्रों और आश्चर्यजनक लड़ाइयों के प्रशंसक हैं, तो अगेंस्ट द गॉड्स अवश्य देखना। चाहे आप वेब उपन्यास, मंगा रूपांतरण के प्रशंसक हो या आप पहली बार इसमें शामिल होना चाह रहे हो, आप निराश नहीं होंगे। तो क्या आप इस अविश्वसनीय यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हैं? इस तरह की और सामग्री से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन घंटी दबाएं और नीचे टिप्पणियों में देवताओं के विरुद्ध पर अपने विचार साझा करना न भूलें। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।